मसूरी के फेमस मॉल रोड, ओल्ड कैफे और सनसेट पॉइंट से तो आप सब वाकिफ हैं, पर अगर उससे आगे बढ़कर एक खूबसूरत सी जगह देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। मसूरी की भीड़ी भाड़ी गलियों से कुछ 18 से 20 किलोमीटर केम्प्टी फॉल को क्रॉस करके बसा है ये छोटा सा गांव सेंजी। यहाँ कॉर्न की फार्मिंग होती है और इसी कॉर्न को सन ड्राई करने के लिए लोकल्स ने बेहद अनोखे ढंग से कॉर्न के गुच्छे बनाकर अपने घरों के बाहर लटकाए हैं। ये अद्भुत अंदाज देखकर टूरिस्ट भी सेंजी की तरफ आकर्षित हुए एंड दैट्स हाउ सेंजी अर्न्ड इट्स टाइटल ऑफ कॉर्न विलेज ऑफ उत्तराखंड। गांव में ना वॉक करने का मजा ही कुछ और है। ये धूप बहुत ही प्यारी सी है और सुबह के 8 साढ़े 8 बजे हुए हैं और आप मेरे आसपास अगर बर्ड्स की आवाज़ सुन पा रहे हो, इट्स सच अ डिलाइट। नमस्ते। तो अगर आप भी मेरी तरह नेचर से कनेक्ट करते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते। ये इस घर में कोई रहता है क्या भैया? रहते हैं। एक फेमस जो पुराना घर है, 1976 में बना है ये घर और कम से कम 30 साल से भी पहले से यहाँ पे ये ट्रेंड है ऐसे भुट्टे लटकाने का। तो बेसिकली होता क्या है, इससे सीड्स सूख जाते हैं, उसके बाद इसका आटा बना लेते हैं और सेल भी कर देते हैं। आपका नाम क्या है? दिव्यांशु। दिव्यांशु। तो ऐसे पूरे गांव में ना हर एक घर में आपको ऐसे कॉर्न लटके हुए मिलेंगे। यहाँ पे आ रहे हो? ये देखो यहाँ पे भी कितने सारे कॉर्न्स हैं। और आपका नाम क्या है? आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो? तो आज हमारे साथ सबसे छोटे वाले गाइड्स हैं लेके जाने के लिए। और गेहूं नहीं होते, गेहूं होते हैं ना, गेहूं? हाँ हाँ, ऐसे डालते हैं तब उसका आटा बनता है। तो आप यहाँ खेलने कहाँ जाते हो? खेलने ऊपर चौर पे। आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से आए? आपसे मिलने आए। आपको पता था यहाँ पे संजी? हाँ। क्या? ये आपसे कुछ पूछ रहा। हाँ बोलो। ये बोल रहा था कि आप ब्लॉग करो। हाँ। मिल गया। आपको कैसा लगा मुझसे? अच्छा लगा? कितना? बहुत। अगर आप भी ऐसे ही ऑफ बीट ट्रैवल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे प्लीज व्हाट्सएप करें। और इस गांव के कुछ और किरदारों को जानने का मौका मिला मुझे यहाँ, जिन्होंने गांव में एजुकेशन का इशू सॉल्व किया। तो चलिए पहले मिलते हैं इस कहानी के 2 किरदारों से, लॉरी और कुंवर। I have Laurie with me from Senji and Laurie runs a school here which is called Garhwal English Medium School. So Laurie, how you associated with this village first of all, and it's been how long since you're living here? Okay, well, I met my husband Kunwar back in 2007 when I was doing research here, and we got married in 2008, and 1 year later after we were married, the villagers asked us to start an English medium school. And the reason for that was because they couldn't afford to send their children to schools in Missouri, and all the schools here were just Hindi medium. And so they wanted something better for their children. So we did. We started in a cowshed with 8 students, and we now have 126 students. And recently we've just built a new school for them in just down the road in our village. And we have classes from nursery to class 8. Any message that you think that the audience need to listen to? Yeah, I think sometimes people think because children are living in rural areas and, they're from villages, that they're not worthy of a good education, but they are. These are bright, capable, intelligent children. And just imagine
you know, a child who, you know, might come up with a cure for cancer or for anything. And they're here, and without the opportunity to get a good education, that opportunity for the world might be missed. Very well said. And so in terms of needs, because all the families are struggling, we can't charge very much for tuition. The highest amount is 700 rupees a month. Okay. So for that, we have a sponsorship program where somebody can sponsor a child for $12.50 a month. And other than that, because our school is still being built, we've managed to construct the buildings, but there's still concrete blocks. And we'd like to finish all the classrooms and to finish all the landscaping around. So anybody who wants to donate to the school cost, we figured that it costs about 80,000 rupees to finish one classroom. So that's a way that people can help if they want to. So how do you manage the teachers who come here? So we run a bakery. Okay. And proceeds from the bakery go towards the school, helping to cover cost. We also, of course, have our sponsorship program, so all of those fees help with our operation costs. I'd like to be able to pay my teachers more. Absolutely. And I think I met a couple of volunteers also the other day. I was teaching at the school. Yeah, we have a lot of volunteers who come, and they've been fantastic, really, really helpful. Everybody has skills, something that they can share. Lovely speaking to you. Yeah. Thank you. You too. Thank you. मैं कुंवर सिंह चौहान हूँ और मैं इसी गांव में पैदा हुआ था और 5वीं करने के बाद मैं दिल्ली गया पढ़ने के लिए। मेरे दादाजी वहाँ काम करते थे तो वो मेरे को ले गए थे और ग्रेजुएशन करके मैं वापस आया। इस आने से पहले इन सालों में दादाजी हमेशा बोलते थे भाई अपने गांव को मत भूलो। तो ग्रेजुएशन करके मैं वापस आया और तो 20 साल में लगातार पंचायत का यहाँ पर प्रतिनिधि रहा। तो इस दौरान मैंने फिर गांव में स्कूल भी खोले और गांव में अपने इस गांव में पाइपलाइन भी लाए, रोड भी लाए, बिजली भी लाए, टॉयलेट बनाए, तो भी स्कूल बनाया। तो ये सब काम तभी हुआ क्योंकि मैंने अपने सैंजी गांव में रहने का विचार कर लिया। ये तो मैं देखता हूँ कि अभी तक सरकार की योजनाओं से लोग इतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि लोग अगर खुद अपने आप में करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो तब ये टूरिज़्म से ही हम ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है और कोई योजना इतनी सफल नहीं हो पा रही। सैंजी में मुझे प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ही पहाड़ के गांव में महसूस होने वाला एक ठहराव भी मिला, मानो कि समय थम सा गया हो। और ठहराव की बात करूं तो अक्सर पहाड़ों में देखा जाता है कि दूर दराज के इलाकों में बसे हुए गांव में पलायन यानी माइग्रेशन की समस्या होती है, पर क्योंकि सैंजी मेजर टूरिस्ट स्पॉट मसूरी के काफी नजदीक बसा है तो यहाँ माइग्रेशन इतना नहीं है। मोस्टली माइग्रेशन होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज जैसी मेन चीजें ना होने की वजह से। और सैंजी में लोकल्स ने अपने होम ग्रोन स्पाइसेस और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जैसे कॉर्न और कॉर्नफ्लावर टूरिस्ट को सेल करके अपने लिए एक अलग सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट किया है। दीदी ये अरबी है ना? हाँ। जो ये काट के रखी हुई है। हाँ, अचार बनाएंगे इसका अचार ठहर जाता है? हाँ, मिर्च के साथ ना, हरी मिर्च नहीं होती। हरी मिर्च के साथ। और ये अरबी भी यहीं उगती है क्या? हाँ हाँ, खेत में। और आप यहाँ पे कॉर्न के आटे के अलावा क्या सेल करते हो? और क्या, जैसे कैसी दाल हो गई, हल्दी हो गई। बड़ा सुंदर है आपका गांव। हाँ, यहाँ तो बहुत कस्टमर आते हैं। हाँ। शनिचर इतवार की तो बहुत भीड़। कल तो बहुत सारी गाड़ियाँ शाम तक। अच्छा, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। गांव में वॉक करते हुए आपको अनेकों काम रिन्यूएबल एनर्जी से होते हुए दिखाई देंगे।
जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट्स और पानी की ऊर्जा से चलने वाली हाइड्रोलिक आटा चक्की। Isn't that interesting? यहाँ पे चक्की का आवाज़ भी आ रहा है मुझे, आपको पानी के शोर में शायद सुनाई नहीं देगा। और अगर आप देखोगे ये डोर एकदम ना वाइट हो रखा है वो आटा पीसने की वजह से। और इसके बगल में ही ये एक बहुत ही अमेजिंग सा नींबू का पेड़ लगा, ये पहाड़ी नींबू है। पहाड़ों में ये नींबू को दही में डाल के इसका एक चाट टाइप बना के खाया जाता है, जिसको कि नींबू सान्ना बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। एंड इट इज़ बेसिकली अ विंटर डेलिकेसी। फिर मुलाकात होगी कुछ नए चेहरों और उनकी कहानियों के साथ। तब तक के लिए मोर लव एंड लाइट टू यू।